नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम और ट्रंप की बैठक नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया बयान। कांग्रेस पर साधा मंत्री ने निशाना, कहा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश। गंगा जल संरक्षण अभियान की हुई शुरुआत, केंद्रीय मंत्री ने की सरकार के अभियान की सराहना, कहा जल संरक्षण अब सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका। राजस्थान के कोटपुतली में शाहपुरा समेत कई जगहों पर एसीबी की कार्रवाई, 2 करोड़ की अवैध संपत्ति की जब्त, करोड़ों के फ्लैट फार्म हाउस पर की कार्रवाई। झारखंड के सरायकेला में मानसून का कहर, रेलवे अंडरपास में हुआ जल भराव के चलते आवाजाही बंद, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। पौड़ी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी के मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने लिया मामले का संज्ञान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 3 देशों के विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कनाडा में बैठक नहीं हो पाई है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को कुछ मौजूदा मुद्दों के चलते कैलगरी छोड़कर डीसी लौटना पड़ा, लेकिन तथ्य ये है कि इसके तुरंत बाद 35 मिनट की टेलीफोन कॉल हुई। मुझे लगता है कि हमें बैठक को एक बेहतरीन विवरण दिया गया। तो वहीं इस दौरान हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि मैं कांग्रेस के भ्रामक झूठे आख्यानों को बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि वे हमेशा किसी ऐसे तरीके की तलाश में रहते हैं जिससे भारत को नीचा दिखा सके। Was scheduled with President Trump, which could not take place in physical format because President Trump had to leave Calgary to return to return to DC because of some ongoing issues. On that, I don't want to comment. But the very fact that was immediately followed up by a 35-minute telephone call, and I think we've been given an excellent readout of the meeting. Several objectives were achieved. I think the fact that President Trump started by offering condolences to the Honorable Prime Minister for the deaths in Pahalgam. Prime Minister briefed President Trump on the ongoing Operation Sindoor. He provided a very clear perspective that when the Pahalgam attack took place, I think it was on 22nd April, India had made it abundantly clear that this attack will not go unpunished, and this is no longer possible to justify this as proxy this time. There is our Western neighbor has been using terror as an instrument of state policy, and a clear decision was taken. Therefore, when the events unfolded, yes, there were some exchanges. Those exchanges dealt with a message which had come through the US Vice President. The US Vice President had talked about the Pakistanis likely to use force, to which they got a reply from the Honorable Prime Minister that if that were to be the case, our response would be even more robust. We have never accepted, and this has been a consistent position of India, third-party mediation, and there was no discussion on any trade or any other aspect during the exchanges with the US. The request for a ceasefire came from the Pakistani side, it came from their Director General of Military Operation, and it was responded to. And I think after having demonstrated to the world that in those 22 minutes, 9 terror outfits, all right, which have security links also were hit, and not in a notional or a pro forma way, but hundreds of kilometers inside Murid ke, Bhavalpur, and also, I must remind you, the allied security infrastructure. But again, the Prime Minister has been making it clear. He provided the G7 with a very clear enunciation of position. The idea was not to attack Pakistan. The idea was to attack the terror establishment in a non-escalatory manner, and those who were perpetrating that terror, to leave them in no doubt that any attack on India, any terror attack, will henceforth be considered an act of war, and that Operation Sindoor is an ongoing process. I was just shown a message by which
quote from the Prime Minister of Canada, Mr. PM Carney, who said, "Honored to work with India on artificial intelligence, energy and the anti-terror fight." So, you know, some of my friends in the, I should now start calling them lie producing factory, LPF instead of INC, constantly, I mean, they turn to, oh, there's no invitation, and then when a productive 35-minute exchange takes place, they resort to, I don't know, frankly, whether this is ineptitude and incompetence or this is pure lies. But either case, it's a lie. Then they take resort to an earlier conversation which took place in January and say, well, this is not the readout. Arre bhai, readout aane do unka. But should you or should you not accept a detailed readout by your own foreign secretary and point by point? So all I can do is, I don't want to dignify the Congress party's ongoing, hallucinatory, I would call it hallucinatory fake narratives that they go and put on. But through all this, I get the feeling, Suchitra ji, that they're always looking for some way in which they can show India down. If India achieves a spectacular military success in those 22 minutes and the evidence of the devastation caused is in the public domain through commercially available satellite imagery, the Congress party and its, lie-peddling geniuses will go into some other direction, looking for some little thing to hang on there. In the process, they not only enhance and exacerbate their own irrelevance, but show them up in front of their own party also for the kind of people that they are. Apart from this, हिमाचल में 2023 में मानसून सीजन में भारी बारिश के चलते प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब केंद्र की मोदी सरकार ने इस आपदा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस गृह मंत्रालय ने 2023 में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए पुनर्वास योजना के लिए 2006 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हिमाचल की जनता की ओर से मैं पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी ने हमेशा हिमाचल को अपना माना है। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2023 की बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 2006 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के लिए हिमाचल प्रदेश को हमेशा से उन्होंने अपना समझा है और सदैव उनका प्यार प्रदेश को मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा जो राशि जारी की गई है वह निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को 2023 के मानसून के दौरान बादल फटने से और भूस्खलन के कारण होने वाली क्षति और विनाश से हुई तबाही से रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियों में मदद मिलेगी। इस साल अप्रैल में भी हिमाचल प्रदेश के लिए अलग से 136 करोड़ रुपए गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री जी ने दिए थे और उसी तरीके से अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने SDRF में 189 करोड़ रुपीस जारी किए थे। इससे पूर्व गृह मंत्री जी ने वर्ष 2023 में दिसंबर में हिमाचल प्रदेश को राहत कार्यों के लिए NDRF से 633 करोड़ रुपए दिए थे और SDRF से 180 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से अगस्त 2023 में 400 करोड़ रुपए और NDRF को एडवांस असिस्टेंस के तौर पर 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी गई थी। इस प्रकार से आज से पूर्व रिलीफ पैकेज के रूप में 2023 की घटना के लिए
लगभग 1782 करोड़ रुपए पहले दिए जा चुके हैं और आज 2000 करोड़ रुपए और दिए जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि देवभूमि में संकट से निपटने और आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने में मोदी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और आपदा पीड़ित नागरिकों को महत्वपूर्ण संबल मिला है और मोदी सरकार हमेशा इस बात के लिए तैयार रही है। मोदी जी देवभूमि की जनता के साथ हर संकट में खड़े रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता के लिए सदैव कटिबद्ध रहे हैं। इस वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष में चलने वाले विकास कार्यों के लिए 11,806 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किया है। कर राजस्व की हिस्सेदारी जो सेंट्रल फंड की हिस्सेदारी है उसके तहत 10,681 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही 13,285 करोड़ रुपए अलग से अनुदान सहायता के रूप में हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। पूंजी निवेश और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास और भूमि लैंड रिफॉर्म्स की डिजिटलाइजेशन के लिए 1,050 करोड़ रुपए की राशि अलग से स्वीकृत की गई है। रेलवे बजट के तहत इस वर्ष हिमाचल प्रदेश को 2,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख कर दी गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश के लगभग 10 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में अब तक 12,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा चुकी हैं और 700 नई बस्तियों को जोड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश को अटल टनल, एम्स, कैंसर संस्थान जैसी कई परियोजनाएं दी गई हैं और जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिंता की गई है। ये सब दर्शाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कितना चिंतित रहते हैं और कितने प्रयत्नशील रहते हैं। मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जोधपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में जल संरक्षण अब सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो इस बात का संकेत है कि जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण वे पर्यावरणीय चेतना की अग्रणी वाहक बन चुकी हैं। जोधपुर शहर द्वारा आयोजित आज इस पत्रकार वार्ता में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी शहर जिला परिवार के मुखिया सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पालीवाल जी, हम सब के बीच में उपस्थित सम्माननीय विधायक आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार मित्रों, दोपहर में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आप सबने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई है। मैं हृदयपूर्वक आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आपका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जल का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है। निरंतर बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जल की आवश्यकताएं और दूसरी ओर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों के चलते हुए आने वाले समय में पानी की उपलब्धता पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है। भारत में चुनौतियां और भी अधिक है क्योंकि भारत आज आबादी के दृष्टिकोण से विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। वहीं दूसरी तरफ भारत की सारी नदियों में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, उन नदियों में कुल साल भर में जितना पानी बहता है उसका लगभग 80% से ज्यादा पानी मॉनसून के 30-40 दिनों में ही प्रवाहित होता है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं,
रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, इरेटिक रेनफॉल्स होने लगी हैं, स्कैंटी रेनफॉल्स, एक एक जगह में कहीं एक साथ क्लाउड बस्ट होकर के बरसात हो जाती है। उसके चलते हुए हमारी नदियां सदा नीरा बनी रहें, ये एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। इसी क्रम में तापमान बढ़ने के चलते हुए जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती, बड़ा संकट हम सबको दिखाई दे रहा है। राजस्थान में चिंता और भी बड़ी है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से हमारी पानी की उपलब्धता पहले भी चुनौती थी, और भारत क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन से पानी निकालने वाला देश है, मैं आप सबके साथ में जानकारी साझा करना चाहता हूं कि दुनिया में दूसरे और तीसरे नंबर पर जो देश पानी निकालने में हमारे बाद में आते हैं, अमेरिका और चाइना। यदि उन दोनों को कुल निकाले हुए पानी को जोड़ दिया जाए तो भी हम उससे 1.5 गुना पानी भारत में निकालते हैं। राजस्थान के कोटपुतली में शाहपुरा समेत कई ठिकानों पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 300% से अधिक की प्रॉपर्टी का खुलासा करते हुए 2 करोड़ से अधिक बेनामी संपत्ति जब्त की। इस कार्रवाई में कई करोड़ों के फ्लैट, कृषि जमीनें, फार्म हाउस, महंगी कारें, इन सभी की बड़े पैमाने पर जांच चल रही है। लाइफ का जो टर्निंग है वो ऐसा है कि इनके जो पीछे के कार्रवाई के दिन देखे जाएं तो इनके घर में कहीं ना कहीं शायद 2 वक्त का खाना नहीं हुआ करता था। फिर आखिरकार ये लाइफ स्टैंडर्ड इन्होंने किस एंगल से मैनेज की, मेंटेन की। सैलरी में घर चलाना मुश्किल है, सुबह की सब्जी नहीं तो शाम का खाना मुश्किल, बच्चों की पढ़ाई मुश्किल, यहां तक कि हम पब्लिक कन्वेंस को यूज करते हैं। इनके पास एंडेवर, फॉर्च्यूनर और यहां तक कि कार्ले विल्सन जैसी लग्जरियस जो इनके पास लाइफ है वो कहां से आई, आखिर एक जांच का विषय है। और जांच भी इतनी लंबी कि आय से 300 गुना 300 टाइम अगर इनके पास में प्रॉपर्टी है तो क्यों ना राज्य सरकार स्पेशल कमेटी बना के और इनको जेल के कटघरे से बाहर नहीं आने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग गवाहों को प्रभावित करेंगे, रिकॉर्ड को प्रभावित करेंगे। इन लोगों के पीछे कौन ऐसे लोग शामिल हैं? बड़े मगरमच्छ भी है क्या कि जो ये कार्रवाई हर जगह जहां पे गए इन्होंने ये सब किया है? तो ये देखने का एक विषय है। और इनके साथ में एक लुटेरी गैंग भी होती है, जिस गैंग में जेएन है, बाबू है, अकाउंटेंट है। ये लोग जहां कहीं भी जाएंगे ये गैंग अपना डाइवर्जन वहां लेगी, अपनी पोस्टिंग वहां लेगी और वहां से ये लूटना खसोटना शुरू कर देंगे। और हम इसी परिप्रेक्ष्य में बात करने चाहेंगे, यहाँ एसीबी अधिकारी जो सर्चिंग ऑफिसर लगे हैं कि जो ये कार्रवाई हुई है ये पिछले लंबे समय पे एक रडार पे ये कर्मचारी थे। इन्होंने कई जगह पे नगर परिषद में भी काम किया है, नगर पालिकाओं में काम किया है। जो इनकी कार्यशैली थी वो संतोषजनक नहीं थी। उसके बाद में काफी कंप्लेंट भी इनकी रही है। आइए हम जानना चाहेंगे कि जो ये टीम यहाँ पे काम कर रही है, ये इन्होंने रिकॉर्ड जब्त किया है या सर आपने रिकॉर्ड जब्त किया है या फिर कार्रवाई ये आपने खत्म की या आगे भी चलेगी? देखो, ये अभी श्रीमान डीजीपी साहब के आदेश पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध 0 टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई की जा रही है और इसमें अभी ज्यादा कुछ कहना अभी उचित नहीं है। ये कार्रवाई अभी बहुत आगे तक रहेगी। अभी तो हम यहाँ एक ऑफिस में आके जो कार्रवाई की है वो एक अपने स्तर पे है, बाकी और जगह अभी सर्चिंग चल रही है। वहां से क्या आता है उसके मुताबिक फिर आगे जो भी है वो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे फतेह सिंह मीना, धर्मपाल जाट, एक और करके एक ये है, ये जहां भी जाते थे इनके साथ में एक पूरी गैंग है। वो एक हम जिसको शाब्दिक शब्दों में कहें एक लुटेरी गैंग है, जिसमें जेएन, अकाउंटेंट और बाबू ये सब शामिल होते हैं। उनकी भूमिका बहुत ज्यादा संदिग्ध है। इसके लिए भी आप कोई रोड मैप तैयार करेंगे? जी, ये अनुसंधान अधिकारी बता पाएंगे। एक्चुअली में क्या है, इसके संबंध में अभी अनुसंधान अधिकारी पूर्ण रूप से कुछ स्पष्ट कह सकते हैं। तो ये जो कार्रवाई चल रही है ये कितने ठिकानों पे चल रही है और कब से चल रही है? ये लगभग 7-8 जगह है और कई इनके जो सहयोगी उनके ठिकानों पे भी की गई है और अभी सर्चिंग जारी है। और जैसे जैसे कुछ आगे कुछ नया मिलता है उस पर फिर और आगे कार्रवाई की जाएगी। तब भी तो इस तरह की कार्रवाइयों में आगे मतलब प्रभावी हो सकती है और लगभग लगता है कि भाई कुछ आय से अधिक अर्जित किया है तभी जाके इस तरह की चीजों को कर पाना ठीक रहेगा। तो ये थे हमारे साथ एसीबी अधिकारी। इनका कहना है कि जांच चल रही है और जांच पूरे प्रभावी तरीके से और कड़े तरीके से चल रही है।
जो लोग इनके साथ शामिल हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो भी नहीं बचेंगे। जिन लोगों ने रेवेन्यू का, सरकार का, पब्लिक के पैसे का नुकसान किया है, वो कहीं ना कहीं एक कठोरतम ढंग से इन पे कार्रवाई अमल में ली जाएगी। यहाँ नगर पालिका पावटा प्रागपुरा में ये जो कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई सुबह से चल रही है, और जो इनके ऊपर जो प्रभावी कार्रवाई है वो इनके संदिग्ध 6, 7, 8 ठिकाने हैं, और ये ठिकाने बढ़ भी सकते हैं। और जो कार्रवाई में जो टीमें लगी हैं, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संदिग्ध है, और आय से अधिक संपत्ति का होना तो तय है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो भी कहीं बहुत अधिक है। पिछले समय में कोटपुतली में इन्होंने कस्टोडियन जमीन को भी बिना राज्य सरकार की परमिशन के या बिना नोटिफिकेशन के इन्होंने भूमि संपरिवर्तित किया है। बहुत से कारनामे ऐसे हैं जो परत दर परत खुलते रहेंगे। सुमेर के साथ में धर्मवीर यादव, पावटा, जयपुर। खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि ये आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के अनुरूप किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य उपस्थित रहे। खबर झारखंड के सरायकेला से है, जहां मानसून का कहर देखने को मिला। बता दें कि रेलवे अंडरपास में बारिश के कारण अचानक पानी भर गया, जिससे आवाजाही बंद हो गई और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जल भराव के कारण लोगों में काफी डर पैदा हो गया है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह जल भराव की समस्या बढ़ती रही तो जल्द ही अंडरपास क्षतिग्रस्त हो जाएगा। खबर पौड़ी से है, जहां एक व्यक्ति ने चोरी के मामले को लेकर थाना लक्ष्मण झूला पर शिकायत दर्ज कराई। दरअसल व्यक्ति राजेंद्र दास महाराज का प्रवचन सुनने आए थे और वहां काफी लोग उपस्थित थे। इसी दौरान वहीं पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने 10 महिला श्रद्धालुओं की सोने की चेन चुरा ली, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियोग के सफल निस्तारण कर अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए टीम गठित की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जनपद पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय महिला गैंग के 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये महिलाएं धार्मिक स्थलों पर, मेले, त्यौहार इत्यादि में जाकर कई महिलाओं की सोने की चेन लूटने का कार्य करते थे। जनपद में हमारे पास थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत एक धार्मिक इवेंट के समय कुछ महिलाओं की सोने की चेन लूटने का प्रकरण प्रकाश में आया, जिसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हमारी टीम्स ने सीसीटीवी खंगाले और जांच में ये पाया कि कुछ महिलाएं जो कि मेवात की रहने वाली हैं, ये महिलाएं भिन्न भिन्न धार्मिक स्थलों व मेले त्योहारों इत्यादि में जाती हैं और महिलाओं को टारगेट करते हुए उनकी सोने की चेन लूटती हैं। इसका संज्ञान लेते हुए हमारी टीम्स ने इस गैंग के 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही कुल 6 सोने की चेन को भी बरामद किया गया है। इन महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी करने के उपरांत इनको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। खबर सोनभद्र से है, जहां मराठी गांव में एक युवक घर पर सो रहा था कि तभी दोनों दबंगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक को मौत के घाट उतारा। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। दिनांक 17-18 जून की रात्रि करीब 12:30 बजे कोलर अनिल यादव, जो कि मराठी गांव थाना सागंज के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि करीब रात को 12:30 बजे उनके फादर, जो कि अमरनाथ यादव, करीब उम्र 45 वर्ष है, घर के बाहर चारपाई पे सो रहे थे। तभी 3 व्यक्ति जो बता रहे हैं कि जिनका नाम मंगला गुप्ता, ओमजी पाठक और तीसरा अज्ञात व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वो आए। आने के बाद उन्होंने उनके पिताजी पर हमला किया और तमंचे से फायर करके उनको घायल कर दिया और वहाँ से भाग गए। इस सूचना पर तुरंत से पुलिस मौके पर पहुँची और साथ ही साथ जो घायल व्यक्ति उनको अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है और फील्ड के द्वारा सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें एडिशनल एसपी ऑपरेशन है, उनके नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई हैं और जो अभियुक्त नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार काम कर रही है और वादी के द्वारा जो
तहरीर दी गई है, उसमें नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर चली। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां देवनंदनी फ्लाईओवर पर बुधवार की सुबह गेहूं से भरी एक बोलेरो पिकअप पलट गया, जिसके पास से गुजर रहा बाइक सवार भी बोलेरो की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। हालांकि इस दौरान बाइक सवार और बोलेरो सवार को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।